Okay, one question is visible on your screen. Just solve it. Are you able to see the question on the screen? Yes, sir. Okay, just solve it. सभी कोई सॉल्व कर रहे हैं ना? तमंग, अमरजीत, स्वाति, सोनम. Yes, Yes, sir. sir. Solving. Okay. Yes, sir. Okay, keep solving. And if you have any query at any point, ask me. Tell me what is the value of R1, or what will be the value of excess rainfall in this first, it means in this first duration, that is 0 to 30 minute. What will the value of R1 here? So 3.1. How to calculate R1? You know R equal Sir, to P minus P minus 5 IT. into. 5T. So what is the value of precipitation? That is 3.3. 3.3 minus 5 is what? It is given in the question 4 mm per hour, na? And it is centimeter and it is millimeter. So 5 will be what? 0.4. Yes, sir. Okay. And duration is what? Here you can see Half hour. half hour exactly. That is because it is written. It is that precipitation. 0.5. This unit of phi index is in per hour. So convert time this time into hour also. So this will be 0.5. So zero point 0.4 into 0.5 means 0.2. So 0.3 minus 0.2. 3.3 minus 0.2. It will be what? 3.1. Similarly, R2 2.7
minus 0.4 into 0.5. So it will be what? 2.5 centimeter. This is excess rainfall, or you can say this is effective rainfall or runoff. Similarly, R3, 1.9 minus 0.4 into 0.5. That will be what? 1.7 7. centimeter. 7. Now you have this. What is this? This ordinates represents what? Is it DR. unit hydrograph or direct runoff hydrograph or flood hydrograph? What is this? Direct runoff. Direct runoff. Anyone else who differ with this answer? Read the first line of the question. What is written? Unit Unit. a 30 A minute 30-minute unit. unit hydrograph. So this and the storm details for a catchment is given in the table below. What is this? Unit. In the question, it is clearly written a 30-minute unit hydrograph is given. This is unit hydrograph. Okay. Understood, Swati? Yes, sir. This is unit hydrograph. You can say this is UH. I am not saying that this is UH. It is written in the question that it is UH, unit hydrograph. So if this is unit hydrograph, so can we find DRH? This will be what? Here you can write DRH. Okay. And what will be the this effective rainfall? R1 equal to what? R is 3.1. 3.1. Okay. So now what will be the here value? And this is the first 0 to 30 minute. Okay. So you can see this will be equivalent to this UH. So this is equal to what? 0 matlab this into 3.1. So it will be what? 3.1. Similarly, 1.2 into 3.1. 1.2 into 3.1. बताओ क्या होगा? 3.72. 3.72, correct. Similarly, just do multiply 3.1 into all this ordinate. You will get DRH of this runoff depth 3.1. Clear? Yes, sir. Okay. So similarly, find the DRH, the ordinate of DRH 3.1. Here you can write 0, next 1.2 into 3.1, that is 3.72. 3.7. Next, 8.68. next. 5.27. Similarly, you can just multiply all the ordinates with 3.1. 4.3. Yes. 4.3. 4. 4.34. Okay, Yes, next. sir. So 3. Yes, sir. Oh my god. This is what? 4.34. After 4.34, what will be? 0.91. This is 3.4. सर वो 3.34 So होगा. yes, 3.41 होगा. Is it clear to everyone? Now, अब बताओ मुझे what will be here? You can write DRH of what? R is equal to how much? R is equal to 1.7. 2.5. what? 1 point? 2.5, sir. 2.5 na, because this is a R1. Next we will go Yes, for sir, yes. R2, next R3. So first already Yes. we have calculated for 3.1, next 2.5. So R equal to 2.5 centimeter. Okay. Now, so tell me what will I do now? Who will tell?
सर 30 मिनट लैग होगा तो सर Exactly. Why? Because this 2.7 this rainfall is occurring or starting after 30 minutes. So you can write here this is lag by 30 minutes. Clear, Tamang? Yes, sir. Sambhavi? Okay. So here will be no reading will come here. Now, so it will be a start from 30 minutes, na? So this is 30. So write here 30. So this here you can see this is 30 minute and it is lagging by 30 minutes. So the ordinates of this ordinate will be here corresponding to this reading minus 30. Okay, so this minus 30 is equal what? 0. It means you will have to just multiply this 2.5 by this one 0.1 है ना. मतलब अभी हम कितने का लिख रहे हैं? 30 का लिख रहा है ना. तो 30 के कोरोस्पॉन्डिंग अगर लिखना है तो ये मुझे पता है कि ये 30 मिनट्स लैग कर रहा है. तो 30 माइनस 30 करेंगे तो 0 आएगा. तो 0 के कोरोस्पॉन्डिंग ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से. तो यहाँ क्या आएगा? 0 इंटू 2.5 0. नेक्स्ट अभी क्या करेंगे? 60 मिनट के लिए लिखना है मुझे, लेकिन ऑलरेडी ये लैग 30 मिनट कर रहा है. तो 60 माइनस 30 इसका आएगा ना 30 मिनट्स का. तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग 1.2 है. तो 1.2 इंटू क्या होगा? 2.5. बताओ कितना होगा? 3 होगा. 3. नेक्स्ट देखो 90 है. तब एक्चुअली देखो यहाँ पर ना ड्यूरेशन कांस्टेंट है ना. सबका 30 है ना. तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? एक पीछे वाला जाएगा. ठीक है. बहुत जगह तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा जहाँ की ड्यूरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो उसमें ये स्टेप करना पड़ता है कि जिसके लिए हम लिख रहे हैं उसमें माइनस 30 मिनट करेंगे. वैसा क्वेश्चन अभी हम इसके बाद देखेंगे. तो फिलहाल तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि ये इक्वल क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट इंटरवल है. ठीक है. तो जिसमें भी अगर 30 माइनस करेंगे ना, जैसे 90 माइनस 30 करेंगे तो इसके जस्ट पीछे वाला आएगा. ठीक है. तो यहाँ के 2.8 इंटू 2.5 क्या आएगा? बताओ. 7. नेक्स्ट क्या होगा? 4.25. 4.25. नेक्स्ट 3.5. तुम लोग भी कैलकुलेशन करते रहो पैरेलली. क्लियर. इसके बाद आएगा तुम्हारा 0 है ना. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसमें एक टाइम लिख देते हैं. नेक्स्ट टेबल 390 के बाद क्या आएगा? 420. तो ये तो 0 ही था, ये भी 0 होगा. और यहाँ पे क्या होगा? 420 माइनस 30 390. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 इंटू 2.5 यहाँ पे 0 आ जाएगा. ठीक है. नाउ अभी क्या करना है हमको? ये लिखना है हमें DRH ऑफ आर्क इज इक्वल टू व्हाट? 1.7. 1.7. करेक्ट. ये 1.7. सेंटीमीटर में है ना. सेंटीमीटर में है. ये अंडरस्टूड है. ठीक है. यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देना सब. आर इक्वल टू सेंटीमीटर. दिस इज सेंटीमीटर. और इसका यूनिट क्या है? DRH का मीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है ना. इसका जो यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड. ओके. ऑल द यूनिट ऑफ दिस यूनिट ऑफ ऑल द DRH इज मीटर क्यूब पर सेकंड. सो अभी ये बताओ, ये जो DRH R इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर है, ये लैग कितने से कर रहा है? बताओ. 60 minutes. 60 मिनट से. क्योंकि यहाँ पे 60 minutes. एग्जैक्टली यहाँ पे तुम देख पा रहे हो दिस रेनफॉल स्टार्ट्स आफ्टर 60 मिनट्स. सो यू कैन राइट हियर दैट इज लैग बाय 60 minutes. 60 मिनट्स. करेक्ट. नाउ तो ये अभी क्या होगा? ये तो 0 पे तो स्टार्ट ही नहीं होगा, 30 पे भी स्टार्ट नहीं होगा, 60 पे स्टार्ट होगा ना. तो 60 पे हाँ. स्टार्ट होगा और हमें क्या करना है? 60 मिनट माइनस करना है. तो 60 के लिए 60 माइनस करेंगे तो 0 आएगा. तो मतलब अच्छा, जब भी कैलकुलेट करना है तो किससे कैलकुलेट करना है? DRH हमेशा किससे आता है? UH से आता है. पता है ना. DRH जब भी फाइंड करना है तो हमको UH वाले ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना. ऐसा मत करना कि ये जो DRH है, ये तीनों DRH जो है ना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. ठीक है. कोई ऐसा मत कर देना कि ये इसके DRH से मल्टीप्लाई कर देना या इसके DRH से मल्टीप्लाई कर देना. हमेशा याद रखना DRH ऑलवेज यू कैन से ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम UH. ओके. तो जब भी FH से हमें UH आना होगा, चाहे UH से FH आना होगा, तो हमें बीच में DRH को लाना ही पड़ेगा. ठीक है. FH मीन्स फ्लड हाइड्रोग्राफ. क्लियर. यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप UH टू FH और FH टू UH. okay. You always go through
मतलब डीआरएच से होकर जाना होगा, ठीक है। तो हमेशा डीआरएच जब भी हम प्रोड्यूस करेंगे तो यूएच से मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो अभी बताओ यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 0 इंटू 1.7, इट विल 0। नाउ 90 मिनट्स पे बताओ क्या होगा। सोनम भूटिया, सोनम भूटिया, आर यू लिसनिंग? हेलो, यू आर नॉट इन द क्लास? ओके, नो इशू। एनीवन एल्स? Yes, sir. 90 2.04 2.04. 2.04 किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 1.2 को 1.7 से. एग्जैक्टली इससे 1.2 को किया, 1.2 इंटू 1.7 तो क्या आया 2.04. 2.04। नेक्स्ट 4.76. करेक्ट। 2.89. 2.38. अभी देखो 420 का लिखना है ना, तो इसमें से 60 मिनट्स लैग चल रहा है, तो 420 माइनस 60 कितना होगा 360। तो 360.17 इंटू 1.7 कितना है बताओ। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, ठीक है। इसके बाद अगर लिखेंगे ना तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। नो, अभी हमारे पास 3 डीआरएच आ गया है ना, 3 डीआरएच आ गया। तो अभी हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्टेन द रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर द स्टॉर्म, है ना, रन ऑफ हाइड्रोग्राम। तो जो टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होगा ये क्या होगा, तीनों का समेशन होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टोटल डीआरएच या फाइनल डीआरएच, वॉट एवर इस फाइनल डीआरएच, डीआरएच। अभी इसका बताओ मुझे रन ऑफ डेप्थ कितना होगा। So 7.3. 7.3 7.3 कैसे होगा 7.3, क्योंकि यहाँ से 3.1 प्लस 2.5 प्लस 1.7, तो टोटल जो रन ऑफ डेप्थ हो गया हमारा तीनों का समेशन, तो ये हो गया आपका कितना बताया 7.3 सेंटीमीटर। 7.3 करेक्ट, बस। अभी यहाँ क्या करना है, सबका समेशन कर देना है, ठीक है। अब समेशन में कौन सा समेशन करना है बताओ मुझे, समेशन में कौन सा समेशन करना है मुझे बताओ। R1 R2 R3. ओके, तो यहाँ पे R1 R2 R3 क्या हो जाएगा बताओ, जीरो। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, नेक्स्ट 3.72. 3.72। नेक्स्ट, अच्छा सिर्फ इसी को ऐड करना है ना, ये इस वाले कॉलम को ऐड करना है ना, यूएच को ऐड नहीं करना, क्योंकि यूएच से ही तो डीआरएच आया। तो अभी हमें क्या करना है 8.63 8.68 प्लस 3 कितना हो गया 11.68 सिमिलरली नेक्स्ट बताओ क्या होगा 14.31. 14.31। इज दिस क्वेश्चन क्लियर, किसी को कोई इशू, कुछ पूछना है, कौन सा टर्म समझ में नहीं आया? Clear, sir. लास्ट क्या होगा 0.289, है ना, इसके बाद तो जीरो ही आ जाएगा। तो दिस इज योर दिस फाइनल डीआरएच। अभी हमें पूछता है ये कि हमें रन ऑफ डेप्थ यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है, ठीक है, यूएच निकालना है, तब क्या करते हैं। अगर ये पूछता है ऑब्टेन द यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर द स्टॉर्म, तब क्या करते हैं। सर DRH मिलता तो डिवाइड कर लेते. बस ये इसके बाद का जो ये रहता है हमारा, इसके बाद जो टेबल होता है हमारे पास, ये टेबल है ना, ये जैसे अगर यूएच लिखते हैं हम, Multiply. यूएच यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो ये जो रो दिख रहा है ना डीआरएच, इसको डिवाइड करते किससे 7.3 Sir से, R से. हाँ 7.3 Yes, से, sir. None of है ना, that, sir. तो यूएच आया था हमारे पास। क्लियर, Yes, sir. चलो ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 17।
Try to solve this question. इसमें देखो क्या करना है, इसमें हमें निकालना है, फाइंड करना है यूनिट हाइड्रोग्राफ, है ना। डिराइव द 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, है ना। तो क्या करेंगे बताओ मुझे। और ये जो डेटा दिया हुआ हमारा हमारा जो दिस डेटा दिया वो क्या है, फ्लड हाइड्रोग्राफ या डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ या यूनिट हाइड्रोग्राफ? फ्लड हाइड्रोग्राफ है। फ्लड हाइड्रोग्राफ है, करेक्ट। तो तो फ्लड, flood हाइड्रोग्राफ। हाँ तो फ्लड हाइड्रोग्राफ दिया है, तो अभी क्या करेंगे, फ्लड हाइड्रोग्राफ से हम जाएंगे कहाँ पे, डायरेक्ट में। डायरेक्ट DRH डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ में। DRH हाँ, और डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ। लेकिन डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ जाने के लिए क्या चाहिए हमें, आर। आर चाहिए, रन ऑफ डेप्थ चाहिए। तो वो आर कैसे निकलेगा, कोई बता सकते हैं? So volume equals to area. करेक्ट करेक्ट, कितना? वेरी, हाँ करेक्ट, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू रन ऑफ डेप्थ। Area तो into run of हाँ depth. देखो, एरिया तो क्वेश्चन में गिवन है, एरिया यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ, तो वो ऐड करेंगे सब। किसको ऐड करेंगे, डीआरएच के add ऑर्डिनेट्स को। Ordinate. हाँ, ये सब डीआरएच coordinates. के ऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टाइम्स। टाइम से। क्लियर, बस। तो वहां से आपका उस कैलकुलेशन से आर आ जाएगा और उसके बाद यूएच आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो तुम लोग क्विकली। आर का वैल्यू अगर किसी का है बताना मुझे, आर का वैल्यू क्या आया। सर बोलिए। सर ये बेस फ्लो 5 मीटर क्यूब पर सेकंड होता ना। कहाँ पे लिखा है बताओ। हाँ, 5 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यस सर। है ना। उसको हम ठीक कर दे रहे हैं, अभी कर दिए ठीक, है ना। ये वर्ड में भी इसका मतलब गलत होगा, 5 मीटर क्यूब पर सेकंड। हम्म printer में। So 1.347 into 10 to the power minus 4. आर का वैल्यू कैसे आएगा वैसे, Yes sir. उतना नहीं आएगा ना। आर का वैल्यू सेंटीमीटर में आएगा ना, देखो। और कोई, अभी ये डीआरएच हमें चाहिए। तो डीआरएच के लिए क्या करते हैं हम, एफएच से डीआरएच कैसे निकालते हैं बताओ, माइनस बेस फ्लो। तो इसमें बेस फ्लो क्या दिख रहा है तुम्हें, इनिशियल देखो 50 और 50 और लास्ट में भी 50 पे आके रुक गया है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो बेस फ्लो है 50 है। तो एफएच से 50 माइनस कर देंगे सब में, तो वी विल गेट डीआरएच। तो यहाँ पे आएगा 75। नेक्स्ट सर 0.269। करेक्ट, 0.269 मीटर में आया ना। तो ये Yes, sir. 26.9 सेंटीमीटर।
Yes, sir. करेक्ट, बस हाँ सर बेस फ्लो 5 सर दिया है, बेस फ्लो 5 दिया हुआ है सर। 5 दिया है उधर एज्यूम कांस्टेंट constant। ये 50 है बाबू, है ना, ये 50 है, वो ठीक तो है, डेटा से ही पता चल जाएगा सर कि 50 है। करेक्ट है। अभी जैसे ये मीटर क्यूब उसको दिख गया लेकिन 5 नहीं दिखा, है ना, तो ये देखो एक एक ने निकाला टाइपो एरर, मतलब टाइपो जो टाइपिंग एरर, और तुम्हें टेक्निकल एरर निकालना है ना इसमें। टाइपिंग एरर तो अंडरस्टूड है कि वो मीटर स्क्वायर नहीं, ठीक है, जैसे ये हाँ ये सत्यम, सर हम 50 ही ले लिए थे, हम तो वो अच्छा अच्छा, वहाँ पे देख लिए बेस फ्लो से ऊपर डीआरएच होता है। ओके ओके, हाँ तो वहीं से हमको ठीक है, यहाँ पे भी गलती हो गया था, तो चलो वर्ड में भी ठीक कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, एज्यूम बेस फ्लो, ये अगर नहीं भी दिया रहता, ये अगर हमें नहीं भी दिया रहता ना, तब भी हमें वो समझ में आ रहा है कि वो 50 है, क्या तमंग, यस सर सब कैसे होगा फिर अगर आप, ये तो फिर रटने वाला बात हो गया ना। यस सर। अमरजीत, और किसने किसने 5 लिया था डीआरएच, कोई नहीं, तो 5 नहीं लिया था सर, कंफ्यूज हो गए थे लाइक अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन में ठीक है, कोई हुआ बात फिर नहीं। क्या करे। तो अभी देखो यहाँ पे, चलो डीआरएच, अभी हमको क्या करना चाहिए, क्या फाइंड करना है, आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू इस सबसे पहले इसका समेशन चाहिए मुझे, डीआरएच का समेशन। तो ये समेशन कितना हो गया बताओ तो मुझे, ये जो टोटल कितना है 996 ना, करेक्ट। तो हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू डेप्थ। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, है ना, तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स 996 आया हमारा, सर 996, 999 आ रहा है सर। नहीं 996 आएगा, 996 यहाँ है। ठीक है, 996 इंटू टाइम यस इंटरवल, सर। टाइम इंटरवल क्या है बताओ स्वाति, 3। जिसका यस सर। 999 आया ना, वो फिर से थोड़ा एक बार कैलकुलेट करना, हो सकता है हम गलत हो। नो थ्री, सर 996 ही आया। सर 996 है। करेक्ट, ठीक है। गलती हो गई। तो ये 996। ये 3600 क्यों किए, क्योंकि आवर से सेकंड में बदलना है ना, क्योंकि ये मीटर क्यूब पर सेकंड में है ना, इसका अच्छा, जब टेबल बनाना ना तो यूनिट जरूर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया, क्या है 40 किलोमीटर स्क्वायर, तो किलोमीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब में, तो हम क्या करेंगे इसको, 10⁻6 से मल्टीप्लाई। करेक्ट, ठीक है। अभी इसको देखो, इसको जस्ट सॉल्व करो और यू विल गेट आर, आर एज कितना है बताओ, 0.269 26 ना, 9 मीटर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 26.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डीआरएच की जगह बात क्या आ जाएगा हमें, यूएच, यूएच, तो यूएच इक्वल टू व्हाट, डीआरएच डिवाइड बाय आर, बस ये तो करना था, और तो कुछ नहीं है। बताओ यहाँ पे क्या होगा, सर हम्म, इसमें कंफ्यूजन होता है कि आप सेंटीमीटर वाले से डिवाइड दे रहे हैं। सेंटीमीटर वाले से डिवाइड दे रहा है ना, किससे, कहाँ बताया, हाँ अच्छा एक सेकेंड, ये जो यूएच का मतलब क्या था, यूएच का मतलब था, यूएच का मतलब हमने पहले ही डेजिग्नेट कर दिया है कि यूएच रिप्रेजेंट रन ऑफ डेप्थ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो डीआरएच है ना, ये डीआरएच जो यहाँ पे आया है, ठीक है, तो इस डीआरएच के लिए हमारा रन ऑफ डेप्थ कितना है बताओ, 26.9 सेंटीमीटर। 26.9 सेंटीमीटर। अब अभी मान लो सेंटीमीटर छोड़ दो, अभी मीटर में ही आ जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, इसका रन ऑफ डेप्थ है 0.269 मीटर, यही है ना। तो यस सर। 0.269 मीटर के कोरोस्पॉन्डिंग ये डीआरएच है, ठीक है। और हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर के लिए, तो या तो इसको 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, या तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। मैं क्या कर रहा हूँ कि हर बार इसको सेंटीमीटर में बदल दे रहा हूँ, है ना। तो 26.9 सेंटीमीटर के लिए इतना है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा, यस सर डिवाइड दे देंगे। करेक्ट समझ गए। सत्यम, समझ गया सत्यम, यस यस है यस ना। सर। बस वही 5 पेन का दाम 20 रुपए है, तो एक पेन का दाम कितना होगा, 20/5। अभी हम रुपया को पेन से अब डिवाइड कर रहे हैं, अब यही बोलेंगे ना कि रुपया को पेन से कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो एक ही यूनिट होना चाहिए। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड,
यूनिटरी। करेक्ट, यूनिटरी मेथड, वेरी गुड। method. हाँ, तो बस यही है ना? ऐसा क्वेश्चन पूछा करो ना, अगर सब बस हाँ में हाँ मिलाते हो। वेरी गुड सत्यम। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया यस सर। है ना? तो अच्छा, ये जो देखो हम क्या कर रहे हैं, बार बार हमें पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में हम या इसी क्वेश्चन, हाँ पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने? क्या किया, यूएच को डीआरएच में कन्वर्ट किया ना, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर रिस्पॉन्स। मतलब कोई भी यूएच है हमारे पास, ठीक है? अभी जैसे मान लो कोई भी हम डैम बना रहे हैं या रिजर्वायर या कुछ भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है? तो हमें वहां डीआरएच जानना होता है, ठीक है? तो डीआरएच किस पे डिपेंड करता है, बताओ? डीआरएच जो है किस पे, या किसी भी बेसिन का जो डिस्चार्ज है किस पे डिपेंड करता है? कैचमेंट पर सर। हाँ, कैचमेंट पे करता ही है। क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब मेन कैचमेंट तो फर्क करता ही है, लेकिन मान लो कैचमेंट एक है, कैचमेंट का सारा प्रॉपर्टी एक है, तब किस पे डिपेंड करेगा? एक ही कैचमेंट है, कोई एक कैचमेंट के लिए हम बना रहे हैं वहां पे डैम, तो अभी वहां पे डिस्चार्ज निकालना है उस पॉइंट पे, तो वो डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रेसिपिटेशन ना, बारिश। जितना ज्यादा बारिश होगा उतना ज्यादा उसका डिस्चार्ज होगा, है कि नहीं? सब पर बारिश भी तो यूनिफॉर्म ही होगा ना। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आज 2020 में जितना बारिश हुआ 2021 में भी होगा, 2022 में भी होगा, ऐसा संभव है? No sir, नहीं that ना, is not हाँ वही possible. वही हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि द डिस्चार्ज इज प्राइमरली डिपेंडिंग अपॉन प्रेसिपिटेशन, है ना? ये प्रेसिपिटेशन, या उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सेस रेनफॉल, कि जितना ज्यादा रन ऑफ होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज होगा। तो हमें क्या चाहिए, डिस्चार्ज किसी का हमें फ्लड हाइड्रोग्राफ चाहिए, ठीक है ना? तो फ्लड हाइड्रोग्राफ हमेशा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेसिपिटेशन का वैल्यू हम प्रेसिपिटेशन से वो मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास अगर किसी भी बेसिन का, है ना, जिस बेसिन पे हमें मतलब हम जो कंसर्न बेसिन है उस बेसिन का अगर हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ पता है, ठीक है? अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट्स पता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे रन ऑफ से, मतलब रन ऑफ डेप्थ से। तो हमें क्या आ जाएगा, फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो बार बार फ्लड हाइड्रोग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। तो यही इसीलिए हम यूनिट हाइड्रोग्राफ हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना? इसीलिए यूनिट हाइड्रोग्राफ हम फाइंड करते हैं कि अगर किसी भी बेसिन का, किसी भी पॉइंट का, किसी भी एरिया का हमें हमारे पास अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो हम किसी भी रन ऑफ डेप्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लड हाइड्रोग्राफ फाइंड कर सकते हैं, है ना? तो दैट वाई यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इम्पोर्टेंट और यूजफुल, ठीक है? और इसीलिए हम इसको यूनिट हाइड्रोग्राफ को फाइंड करते हैं। तो अभी हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, यूएच को मल्टीप्लाई कर रहे थे आर से, रन ऑफ डेप्थ से, तो हमारे पास डीआरएच आ रहा था। तो इसी को बोलते हैं हम लीनियर रिस्पॉन्स, कि अगर 1 सेंटीमीटर के लिए इतना है तो 3 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा। तो अभी बताओ यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एकदम सिंपल कैलकुलेशन, है कि नहीं? क्लियर? हेलो? यस सर। ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया एक यूनिट हाइड्रोग्राफ का, ये हो गया प्रॉपर्टी कि ये लीनियर रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि जस्ट जितने भी रन ऑफ डेप्थ के लिए चाहिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है? और एक होता है टाइम इनवेरिएंस, मतलब अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ देखो यहाँ पे, इस डीआरएच में, फर्स्ट डीआरएच में क्या किए थे हमने, इस यूएच से मल्टीप्लाई किए थे। और सेकंड डीआरएच में क्या किए थे, देखो इसका 30 मिनट है लेकिन हम लिख किसके रहे हैं, 0 मिनट के लिए। और इसका जो था 60 मिनट लैग था, फिर भी वैल्यू सेम आ रहा था। इसका मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ अगर किसी का भी हम फाइंड कर लिए, है ना, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो यही हो गया हमारा टाइम इनवेरिएंस। क्लियर? तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का ये दो मेन प्रिंसिपल बोलो या प्रॉपर्टीज, ये दो प्रॉपर्टीज है, एक है क्या, टाइम इनवेरिएंस, और एक है लीनियर रिस्पॉन्स, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? स्वाति, तमंग, अमरजीत? Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो, sir. ओके। Yes sir. ओके, नाउ अभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कीजिए। ये छोटा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, देखो 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया ना, तो इसी को सेम अभी जैसे Yes, sir. अभी जैसे पहले किया ना। अच्छा देखो, कहीं कहीं पे तुम्हें एक्सेस रेनफॉल लिखा रहेगा, ठीक है? कहीं पर रन ऑफ भी लिखा हो सकता है, ठीक है?
एक्सेस रेनफॉल का मतलब रन ऑफ। ये जो डेटा गिवन है ऑर्डिनेट्स, ये क्या है? यूएच, डीआरएच या एफएच? UH, sir. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में ना यूनिट हाइड्रोग्राफ। Yes, sir. तो ये आ गया हमारा 6 आवर यूएच, ऑर्डिनेट्स 0, 10, 40, 55, नेक्स्ट 45, 30, 7, 0। तो अभी ये क्या पूछा? द यूनिट डेप्थ। यूनिट डेप्थ तो अगर ये गिवन नहीं भी होगा तो ये तो पता है हमें ना, ये लाइन अगर गिवन नहीं भी है तब भी हमें पता है ना कि Yes, sir. यूनिट हाइड्रोग्राफ का रन ऑफ डेप्थ कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। 1 centimeter. ओके, हाँ। अराइव एट द Yes, sir. डीआरएच, अभी हमें क्या फाइंड करना है? डीआरएच फाइंड करना है, और 2 रेनफॉल दिया हुआ है। तो अभी मुझे बताओ ये R1 कितना हो जाएगा? बताओ, ये तो डायरेक्ट गिवन है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। ये R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 6 सेंटीमीटर। करेक्ट, क्योंकि ये पर आवर है ना, तो एक आवर में कितना हो गया ये? 1, तो 6 आवर के लिए कितना हो गया? 1 इंटू 6. 6 सेंटीमीटर। और R2 क्या हो गया? 0.5 इंटू 6, 3. तो ये 3 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या चाहिए? यहाँ 6 आवर यूएच पता है, तो ये हमें डीआरएच किसके लिए? आर का वैल्यू कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी बताओ क्या होगा यहाँ पे? अभी नेक्स्ट डीआरएच 3 सेंटीमीटर के लिए। तो अभी बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? खाली छोड़ दे। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे? ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो रेनफॉल स्टार्ट हो रहा है कब से? 6 आवर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। यहाँ पे डैश 6 आवर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसको 6 आवर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं? लैग बाई 6 आवर। 6. करेक्ट, लैग बाई 6 आवर। तो यहाँ पे 6 आवर, तो 6 आवर के लिए लिखना है, और लैग बाई 6 आवर, तो 6 माइनस 6 मतलब 0, तो ये 0 इंटू 3, ये 0 ही हो गया। यहाँ पे भी देखो सब 6 ही आवर है ना, सब में 6 आवर ये है, तो इसमें बस एक ही है, इसका जस्ट प्रीवियस वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 3 क्या हो गया यहाँ पे? 30, 120, 165, 135, नेक्स्ट 90, नेक्स्ट 90. 21 है ना, इसके बाद तो 0 आ जाएगा। तो ये डीआरएच दोनों का आ गया। तो अभी डीआरएच टोटल फाइनल डीआरएच क्या हो जाएगा? फाइनल Summation. डीआरएच, और इसका आर का वैल्यू क्या होगा बताओ? 6 प्लस 3, 9 ना, 9. 9 होगा। 9 सेंटीमीटर। तो ये अभी 0 और डैश, मतलब ये 0 हो गया। 60 प्लस 0 60, 240 प्लस 270. 30, 270, नेक्स्ट 450, 450. नेक्स्ट 435, 315, 132. 132 और नेक्स्ट 21। बस 21. यही था आंसर, बस। ठीक है, Yes, sir. ओके, ये भी आ गया समझ में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर, ये क्या है? गिवन बिलो आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर अ कैचमेंट, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट ऑफ द डीआरएच। तो इसके लिए क्या करना है बताओ? इसके लिए तो कुछ बस एक ही लाइन लिखना है, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 3.5 से, तो यू विल गेट डीआरएच,
है ना, ये सॉल्व हो जाएगा सभी से, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 19। Yes, sir. एक बार Yes, पढ़, sir. हाँ एक Yes, बार, sir. ओके। इसमें क्या करना है बताओ? इसमें क्या, DRH find करना। हाँ कैसे करेंगे डीआरएस फाइंड? हेलो, अच्छा ये देखो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये ईएस का क्वेश्चन था, देखो आईएएस 2009 का क्वेश्चन था ये वाला, प्रीवियस। ठीक है, ये क्वेश्चन ईएस का था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया ना तमंग, क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. क्या करेंगे बताओ? सर हम DRH फाइंड करेंगे। कैसे? इसका डीआरएस कितना होगा? Rainfall excess. हाँ इसमें तो सामने दिख रहा है, इसमें तो कुछ कर रहा है, ये तो एमसीक्यू टाइप हो गया। ये 3.5 मल्टीप्लाई कर देना सारे ऑडियंस में, यू विल गेट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, है कि नहीं सत्यम? Yes, sir. Yes, ओके sir. हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी जो अभी तक हम करते आए हैं, यूएच दिया हुआ है, इसका भी डीआरएच फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो डीआरएच 2 बार फाइंड करना होगा, किसके किसके लिए? एक बार 3 सेंटीमीटर के लिए और एक बार 2 सेंटीमीटर के लिए, और बाद में क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, है ना। अभी ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखो ड्यूरेशन सेम नहीं है, देखो यहाँ पर ऊपर टाइम में ड्यूरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें तुम वैसे नहीं कर सकते थे जैसे अभी पहले कर रहे थे कि जस्ट प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, है ना। इसमें अब क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सब में माइनस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से सॉल्व कीजिए। अच्छा देखो ये क्वेश्चन नंबर 21, यही है ना, दिख रहा है सभी को? Yes, sir. संभवी? दिख Yes, रहा sir. है। Yes, sir. ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्या करना है हमें, ये देखो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल दिया हुआ है, तो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल से इफेक्टिव रेनफॉल कैसे फाइंड करेंगे? ये एक्यूमुलेटेड है ना, Minus. नहीं नहीं डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, ये एक्यूमुलेटेड है, तो हमें पहले इंटेंसिटी फाइंड करना होगा ना, हम इंटेंसिटी में माइनस करते हैं ना, P माइनस 5T वेयर P इज व्हाट, रेनफॉल इंटेंसिटी। तो ये 0 हो गया, यहाँ 3.5, ये 11 माइनस 3.5 तो 7.5, ये 16.5 माइनस 11 तो 5.5। क्लियर? हेलो, Yes, sir. ओके तो ये हो गया हमारे पास इफेक्टिव रेनफॉल। तो ये देखो फर्स्ट जो है, मतलब पहले फर्स्ट 6 ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिव रेनफॉल कितना है, 2 है ना। ये फर्स्ट 6 ड्यूरेशन के लिए, फर्स्ट 6 आवर ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये था हमारे पास टाइम, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया, ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर? अभी क्या करना है हमें, ऑर्डिनेट ऑफ 2 सेंटीमीटर डीआरएच निकालना है ना। तो ये जो 2 सेंटीमीटर डीआरएच है, ये फर्स्ट 6 ड्यूरेशन के लिए है, फर्स्ट 6 आवर ड्यूरेशन के लिए। तो ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा 0 से ही। क्लियर? तो 0 Yes, इंटू sir. 0 इंटू 2 0, यहाँ भी देखो क्या किए, 0 इंटू 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 100, 50 इंटू 200, 85 इंटू 2 170। ये समझ में आ गया, ये रो कैसे लिखा हमने यहाँ पे? Yes, sir. सत्यम, तमंग, अमरजीत, शांभवी? Yes, sir. ओके अभी Yes, ये sir. ये ऑर्डिनेट लिखो, यहाँ से देख के मत लिखो, खुद से लिखो, यहाँ से देख के मत लिखना, खुद से देखो तो आ रहा है या नहीं। अरे ये कौन मैसेज किया मुझे अभी? धीरज शर्मा, हेलो। Sir is not here नो नो right नो, now. ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir.
यस सर दिख रहा है। ओके ठीक है। हाँ तो यहाँ क्या था, ये ऑर्डिनेट ऑफ 6 सेंटीमीटर डीआरएच फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, 6 आवर जो ये डीआरएच है ना, ऑर्डिनेट ऑफ 6 सेंटीमीटर डीआरएच मतलब इसका, तो ये लैग बाई क्या होगा, लैग बाई 6 लैग बाई 6 आवर होगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा ना, 0, ठीक है। यहाँ पे भी 0 स्टार्ट होगा यहाँ से, है ना। तो 6 आवर से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 0 टाइम से, मतलब इस 0 इंटू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या आएगा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम इस तरह, 0 दिस इंटू 6, है ना। तो ये आ गया 0। अभी नेक्स्ट बताओ, 9 के लिए लिखना है हमें, और ये 6 आवर लैग कर रहा है, तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। हेलो, बताओ यहाँ पे अगर करना है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। 9 सेंटीमीटर के लिखना है और 6 आवर ये डिले हो रहा है, लैग बाय 6 आवर। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 25 से 25 25 25 इंटू क्या 6, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट के लिए बताओ, 12 है ना, और 6 आवर के लिए हमें लिखना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 50 से इंटू 6, 300 करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट, 15 आवर के लिए 10 लिखना हमें, so 50 माइनस 6 मतलब 85 9, तो दिस इंटू 6 आवर, क्लियर। अभी बताओ 18 आवर के लिए लिखना है, तो क्या करेंगे 125 इंटू 6, है ना। अभी 24 के लिए करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे बताओ, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, so 160 से into 6 सत्यम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, संभवी। सर 185 185 से। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ना दमांग, कि हमें ये तो हम शॉर्टकट है ना, कि ड्यूरेशन कांस्टेंट होता है तो एक पहले पहले वाला से कर लेते हैं, लेकिन मेन जो प्रिंसिपल है इसको फाइंड करने का, जो मेन प्रिंसिपल क्या है, कि जो टाइम पे हम निकाल रहे हैं, जैसे 24 आवर के लिए हम निकाल रहे हैं, और हम देखो ये लैग क्या कर रहा है, 6 आवर से लैग कर रहा है, तो 24 माइनस 6 कितना होता है 18, और 18 18 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा यूएच है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। yes so 184 इसी से तरह yes sir सिमिलरली बताओ, हाँ 30 के लिए हमें फाइंड करना है, और 6 आवर से लैग कर रहा है ये, तो 30 माइनस 6 आवर कितना होता है 24, 24 तो 160 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से, बस इसी तरह इज इक्वल टू 36 के लिए फाइंड करना है हमें, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 110 से 110 इंटू 6 660। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे तमाम, 48 के लिए फाइंड करना है, तो 48 माइनस 6 आवर क्या 42 आवर, 42 आवर के कॉरस्पॉन्डिंग 42 यूएच क्या है 36 36 इंटू 6, बस यही तो करना है। 54 आवर के लिए फाइंड करना है ना, तो 6 आवर लैग मतलब 48 आवर के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूएच है, बस इंटू 6। अभी बताओ 60 आवर के लिए करना है, तो 60 आवर के लिए फाइंड करना है, तो 54 होगा 54 इंटू 6, into 6 करेक्ट। अब ये 69 के लिए फाइंड करना है, तब क्या करेंगे, फिर 63 आएगा उसमें तो हाँ 63, तो और नहीं 63 तो हमें हमारे हमारे पास तो है ही नहीं 63 ना, तब इसीलिए हम क्या करेंगे, 63 नहीं है तो यहाँ पे हमें 63 लाना पड़ेगा, तो 63 के लिए यूएच पहले डिफाइन करना पड़ेगा, 63 के लिए, 63 के लिए यूएच, तो बताओ कितना होगा यूएच, 60 के लिए 8 है और 69 के लिए 0 है, तो इंटरपोलेशन याद है ना सभी को, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये इंटरपोलेट हो रहा है, 60 पे 8 है और 69 पे 0, तो 63 पे कितना होगा, डू यू नो हाउ टू इंटरपोलेट,
हेलो 8/3 होगा सर। 8/3 होगा, वेरी गुड। लेकिन किसी को नहीं पता है तो मैं बताऊंगा फिर कैसे फाइंड करते हैं इसमें। संभवी, यहाँ पे वैल्यू बताओ क्या आएगा 63 पे। हेलो हेलो, Yes, sir. क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 63 पे? 60 पे 8 है, यहाँ पे देखो 60 पे मान लो वैल्यू आपका, ये पता है ना इंटरपोलेशन, x1 पे अगर y1 है और x2 पे y2 है, ठीक है, तो x के corresponding हमें y निकालना है। तो y इज इक्वल टू वॉट, बताओ मुझे जरा। y इज इक्वल टू y1 प्लस x माइनस x1 इंटू क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। बस यही तो है फॉर्मूला इंटरपोलेशन का। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो सिंपल वे में समझो। ये क्या था हमारे पास 60 के लिए और 69 के लिए था ना, और 63 के लिए हम फाइंड कर रहे थे, इसके लिए 8 था, इसके लिए 0 था। तो ये 0 से 9 मतलब 9 जाने में 8 सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना, तो 1 जाने में कितना सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब 9 अगर हम गए तो 8 डिवाइड हुआ, तो 1 जाने में कितना होगा 8/9, यही होगा ना। तो 3 जाने में कितना हो जाएगा Yes, बताओ, sir. 3 जाने में 8/9 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 8/3, 8/3, ठीक है। तो 8/3 ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो पहले था 8, अब क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 डिवाइड होगा, माइनस होगा, तो 8 माइनस 8/3। अब कर दो कितना आ रहा है वैल्यू देखो तो, ऐसे ही होगा ना, 8 24 माइनस 8 16/3। 16/3 हाँ। हाँ तो ये 16/3 हो जाएगा। ये तो सिंपल वे में समझ में आ गया। अगर ये भी समझ में नहीं आया था तो ये फॉर्मूला याद रखो, इसको बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन, सिंपल, ठीक है। तो ये 63 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना निकाला अभी हमने 60/3, ये हो गया हमारे पास 60/3, ठीक है 5.33। तो ये जो 69 है हमें चाहिए क्या 69 पे, ये कहाँ थे, यहाँ थे ना 69 63। अब अच्छा अब देखो यार 63 पे चाहिए होगा ना, तो फिर हमें फिर 57 के लिए भी चाहिए होगा, क्योंकि 63 माइनस 6 क्या होगा 57। हाँ सर इंटरपोलेशन के अलावा ग्राफिकली भी वो इजीली आ जाता है, y इक्वल टू mx हाँ प्लस बिल्कुल, c ये से। तो ये क्या, ये तो स्लोप ही तो है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द यस स्लोप, सर, ये स्लोप ही तो है, यस ये सर, ग्राफ से भी आ जाएगा। y1 इंटरसेप्ट है। हाँ ठीक है, तो यस फिलहाल ऐसे भी कर सकते हो, और अगर ये इंटरपोलेट करके भी कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो जो डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है ना उतना पे भी रुक सकते हो, ठीक है, अनलेस और अनटिल किसी स्पेसिफाइड डेटा के लिए ना मांगा हो, ठीक है। तो अभी हम कहा थे, ये आ गया हमारे पास। अब अभी हमें ये फाइंड करना है, मान लो ये ऑर्डिनेट ऑफ 4 सेंटीमीटर DRH, ठीक है, इसको हम डिलीट कर दिया अभी मान लीजिए, ठीक है। तो अब बताओ ये 4 सेंटीमीटर DRH जो है ये कितना लैग बाय क्या हो रहा है 12 आवर, है ना, लैग बाय 12 आवर। तो ये 12 से स्टार्ट होगा, तो तब तक 0 0 0 कुछ नहीं है तब तक, है ना। अभी 12 से स्टार्ट होगा, अभी 12 से स्टार्ट हुआ मतलब 12 पे 0 का जो डेटा होगा रीडिंग, तो ये तो 0 ही हो गया। अभी बताओ 15 के लिए हमें लिखना है और लैग बाई 12 आवर हो रहा है, तो क्या करेंगे बताओ तमंग, 15 माइनस 12, इजंट इट, हेलो, Yes, sir. 3 का 3 का, तो 3 से दिस 25 इंटू into yes sir 4 12 सेंटीमीटर का कर रहे हैं अभी हम फाइंड बस। 4 yes sir अभी बताओ 18 आवर का मुझे चाहिए ना, 18 आवर का, 18th आवर का, तो 18th आवर में से ये क्या लैग बाई 12 चल रहा है, तो 18 में से 12 माइनस तो करेंगे तो क्या आ 6 जाएगा के 6, yes sir तो दिस 6 के so इंटू 15 into 4 4, क्योंकि 4 का हमें DRH चाहिए। अब बताओ 24 माइनस क्या करेंगे 12, तो क्या करेंगे किसका 125 तो 12 का इंटू 4, 125 into करेक्ट। 4 नाउ for 30 we wish to write the DRH, तो 30 and it is lagging by 12 hour, तो 30 minus 12 that is 18, so multiply 18 this 125 UH of 18 into the run of depth which is 4 centimeter, correct। Similarly for 36 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 36 के लिए,
24. correct? Now 24 into what? 4 run of death. 42 के लिए भी क्या करेंगे? 42 minus 12 30 आ गया, तो 110 into 4. बस, सबको समझ में आया ना अमरजीत? Yes, sir. ओके, अभी बताओ संभवी, अब क्या करेंगे? 54 के लिए लिखना है तो क्या करेंगे? हेलो, संभवी इज नॉट इन द क्लास. एनीवन एल्स? स्वाति, श्याम? Yes, sir. 42. 42 के लिए u into 4. श्याम नेक्स्ट बताइए क्या होगा? 60 के लिए लिखना है हमें, तो 60 minus 12 क्या हो जाएगा? 48 उसका 25 है सर, सो 25 into 4. बस इज इक्वल टू 25 इंटू क्या करेंगे? इंटू 4. बस, ठीक है. ये 69 का नहीं आएगा क्योंकि 69 के लिए 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, 69 माइनस 57 आएगा. 57, तो 57 के लिए हमें चाहिए था. ठीक है ना, तो फिलहाल इसमें लिखा नहीं है तो हम इसको अभी हम नहीं भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो अभी ये हमारे पास ये तीनों आ गया. यही तो तीनों तो हम फाइंड कर रहे थे, ये तीनों हमारे पास आ गया है ना. तो अब क्या करना है? अब सिंपल समेशन करना है इसको. ये समेशन हो गया हमारा ये, ठीक है. और ये आ गया हमारा ऑर्डिनेट ऑफ दिस आपका डीआरएच. और बेस फ्लो क्वेश्चन में गिवन था ना, देखो क्वेश्चन में कहीं गिवन था 15. ये द बेस फ्लो कैन बी अज्यूम्ड एट 15 मीटर क्यूब पर सेकंड. तो बेस फ्लो 15 है हमारा, तो एफएच कितना आ जाएगा? एफएच के लिए क्या करते हैं बताओ? डीआरएच प्लस बेस फ्लो, यही करते हैं ना सत्यम, अमरजीत, स्वाति? क्लियर? Yes, Okay. sir. चलो ठीक है. और कोई डाउट आज की क्लास में? At any point if you have any doubt please ask, or just revise it, and if you will get any query regarding this just ask me in the next class. Okay, Yes, sir. in the meantime you can also ask by this phone or internet or through mail. Okay, so thank you for today.